Okay, so again, these are the two questions you have to solve. These are based on your previous chapters, previous concept. Okay. Okay, so I got first answer from Aditya, and that is correct. Anushka, your answer is not correct. We have to we have to calculate percentage. Anushka, okay. I don't know this is first question. Yes, Junaid correct, Ashima correct, Nikhil correct. Yes. So those students are able to get first answer. Very good. 61%. No, that is wrong. You are calculating mole percentage or mass percentage. Be careful. They ask mole percentage. Do not calculate mass percentage.
280 gram of CO, right? Yes. 280 gram of CO, yes. Yes. Anushka, now your answer is correct. Kalyani, that is wrong. Percentage is, let's say, you are writing fraction, I think. Yes, sure, you're correct. Mashimo Verma, wrong. Raj, that is the wrong answer. Yes, Smith, your answer is correct. So now let's solve first question. Many students are able to get the answer. So let's see what others are doing, and where they are making mistake. So they first thing you have to highlight the important information here. That is 240 gram carbon, right? And that is completely convert to CO2. That you want to convert carbon into CO2, but simultaneously CO is also forming. Okay, carbon is also forming CO. So you have to calculate how much CO2 will form and what is the percentage of CO2 in final mixture. Okay. So from here in this part, we can understand 240 gram carbon means moles of carbon is going to be 240 divided by atomic mass, means atomic weight, over here, yeah, molar mass of one mole. So this is 12. So that is how many moles are going to be 20. Now, moles of CO formed, mass is given. So moles of CO is going to be 280 gram. What is the molar mass of CO is 28. So 280 divided by 28 is also 10. That is also equals to 10. Now, from this part you can understand from this part you are able to understand that carbon plus half O2 is forming CO. So stoichiometric coefficient is 1, 1. So X mole will be forming X mole. So that X is 10. So here over here 10 moles. So 10 mole carbon is forming 10 mole CO. So remaining moles of carbon, that is 20 minus 10, 10. These 10 are going to convert into CO2. So what will happen? Now I am writing because I have to keep this question here. So moles of CO2 equals to, okay? So you have to find this, but you know this, C plus O2 gives CO2. So here also you know the stoichiometric coefficient is 1, 1. So Y mole will form Y and Y over here 10. So 10 moles. So final product is going to be 10 moles CO and 10 moles CO2. Okay? 10 moles CO and 10 moles CO2. So final mixture is 10 mole CO and plus 10 mole CO2. So percentage CO2 is going to be 10 moles divided by total number of moles, that is 20 into 100. So it will come 50%. So that's how you are getting 50% from the mole analysis. Okay. So those who are not able to get this question,
Just see where they are making a mistake. In between, I am going to take up attendance poll. Okay, so through attendance, I am taking through poll. Just put the attendance. Okay. Kalyan batch 1 means who has started first, NK1, and 2 means started later. Like after first batch, there is a second batch, right? If you have fine weight, you should convert into moles. You know the molar mass of CO2, so you can convert. Okay, I'm only able to get till now 130 boards. So I think that's it. Remaining 12 are some other persons having two devices, or all those people. Okay, so how many of you are able to get right answer? Let's say I'm taking one more poll. I have to create that poll. Okay. Yes, just not. Okay.
CaCO3, I will tell you. Okay, many students are getting 32%. We'll see. That's it, I think. So these are the results. Till now, 127 students. Okay, given the whole vote over here. So 36 got the answer, 69 is still making mistake, and a lot of students are not able to understand the question. So that means you need to revise. Okay, you need to revise on for that. Okay, let's say now you can start solving second question. Let's see. And if you're not able to understand the question, then ask. Okay, whoever has done second question, good. Some of you are still solving, so solve. हेलो Yes, madam, tell me. सर, ये मिक्सचर एनालिसिस में जब भी आयन ऐड करते हैं तभी क्या होता है? क्या ऐड करते हैं? आयन ऐड करते हैं। हाँ, जैसे सर हम लोग को एक क्वेश्चन इसमें जेई मेन गेट इक्विट में था कि a mixture of KBr and NaBr weighing 0.56 gram was treated with aqueous Ag plus. अच्छा, so Silver. AgBr will form, beta. AgBr is going to be precipitate. AgBr is going to be precipitate. NaBr और KBr तो क्या है? सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्युबल है, ठीक है, सॉल्यूशन बनाएंगे। AgBr precipitate बनाएगा। तो सर इसमें कुछ अलग नहीं होता है ना? नहीं, तो उसमें यही हो गया ना, प्रेसिपिटेट बन गया। अब आपको वहां में मास दे रखा होगा, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कितना प्रेसिपिटेट बना। जितना प्रेसिपिटेट बना होगा वो सब Br आयन के कारण बना होगा। बट मेरा सर उसमें फिर भी रॉन्ग आ रहा है। मैंने 3-4 बार मैं अभी डिस्कशन ही कराऊंगा, मोल हाँ। कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। ओके, तो इसमें छोटे छोटे जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें अलग अलग तरीके से बताते रहेंगे। और यही है, could you later give a list of all the formula together so that it becomes easy to revise them together? No, but I will not give. You need to open your book, write the formula, okay, by yourself. Make a summary. I don't want to build a habit which is going to be very wrong with you. Okay, you have to make your summary notes. तो लेट्स सी भाई, बाकी बहुत लोगों के आंसर अभी नहीं आए हैं, कई लोगों के आंसर मैं वेट कर रहा हूँ। तो लेट्स से इसका भी इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या होना है। ठीक है, पहले देखते हैं कि इसमें 10 ग्राम सैंपल दे रखा है। सो वी विल राइट ओके CaCl2 plus NaCl, that is 10 gram. This is our sample, that is 10 gram. So what we are going to do, we are going to
राइट ओके कैल्शियम क्लोराइड कितना हो सकता है x ग्राम इट कैन बी NaCl it is going to be 10 minus x gram सिंपल है याद है now they have given reaction कि भाई CaCl2 this reaction I have told you already कि this is permanent hardness वाली reaction है कि permanent hardness is removed by Na2CO3 and it is going to form CaCO3 तो होता क्या है परमानेंट हार्डनेस का मतलब क्या है कि अगर वाटर में ये कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट ये सॉल्युबल सॉल्ट अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे सोप जो है वो झाग नहीं बनाएगा है ना या फिर क्लीनिंग एक्शन नहीं होगा उसको बोलते हैं लेदर so that lather is not going to be formed over here and that's why the cleaning action will not take place तो ये soluble है अभी हमें क्या करना है इसको रिमूव करना है तो हमें कैल्शियम से प्रॉब्लम नहीं है हमें कैल्शियम के क्लोराइड से प्रॉब्लम है इसी तरह से हमें क्लोराइड से प्रॉब्लम नहीं है ना हमें कैल्शियम से प्रॉब्लम है मतलब ये दोनों साथ में नहीं होने चाहिए कैल्शियम का अगर कोई और सॉल्ट होगा है ना कैल्शियम का अगर कोई और सॉल्ट होगा जैसे नाइट्रेट होगा तो चलेगा ठीक है क्लोराइड नहीं होना चाहिए या सल्फेट नहीं होना चाहिए इसी तरह से क्लोराइड चलेगा बट कैल्शियम नहीं होना चाहिए मतलब इन दोनों का पेयर नहीं होना चाहिए ठीक है NaCl चलेगा NaCl हार्डनेस नहीं देता और KCl चलेगा कुछ और चलेगा बट इनमें से हमें एक आयन हटाना है तो या तो हम क्लोरीन पूरा निकाल दें या फिर हम कैल्शियम निकाल दें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कैल्शियम को रिमूव कर रहे हैं कैसे ये CaCl2 था क्या था पानी में सॉल्युबल था हमने Na2CO3 बनाया Na2CO3 डाला तो CaCO3 बन गया और दैट इज गोइंग टू बी प्रेसिपिटेट तो ये नीचे जमा हो जाएगा अब क्या करेंगे इसको हटा देंगे प्रेसिपिटेट को प्रेसिपिटेट बन गया तो निकाल सकते हैं उसको so we are going to separate the precipitate and that's how the water is going to get let's say or you can say we are going to remove hardness of water so आपको ये याद रखना है जो हार्डनेस ऑफ वाटर में आपने पढ़ा हुआ है कि कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट सिमिलरली मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना दोज आर गोइंग टू क्रिएट परमानेंट हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस का मतलब क्या है कि जो क्लीनिंग एक्शन है वो अच्छा नहीं होगा राइट एंड इनकम्प्लीट क्लीनिंग एक्शन का मतलब क्या है कि लॉट ऑफ लेट्स से सोप इज वेस्टेड तो एक तरह से वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एनीवे नाउ दिस इज योर रिएक्शन CaCO3 यहाँ पे बन गया अब ये CaCO3 को इन्होंने क्या किया that's they are trying to they are going to heat it तो ये NaCl और इसको आपने हीट किया तो ये बना CaO plus CO ठीक है अब इससे हमें क्या बात पता चली इससे हमें ये बात पता चली if we are going to write these reaction then we can say okay मैं थोड़ा सा और इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ या फिर इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ ठीक now you know this the stoichiometry is 1 mole is going to form 1 mole over here and 1 mole over here is going to form 1 mole over here ठीक है इससे एक मोल बना और इसके हीट होने से यहाँ एक मोल बना इसका मतलब क्या है अगर यहाँ x मोल होगा तो यहाँ पे भी x मोल होगा इस x की वैल्यू इन्होंने दे रखी है व्हाट इज दैट वैल्यू 1.62 ग्राम ये बना डिवाइड बाय इट्स एटॉम सॉरी मॉलिक्यूलर मास इज 56 calcium 40 oxygen 16 so 56 now when you will calculate this value will come close to right so 2.9 into 10 to power x is equals to see this is 162 let's say you can write 162 divided by 56 so 56 into 3 is 168 so it is close to 3 but not 3 little bit less than 3 so if you are going to calculate then this is going to be close to 2.9 into 10 to power minus 2 और बहुत close से देखोगे तो 2.8 something so 2.89 something will come ठीक है
So this is your X value. Now you know the moles, so you can say, okay, moles over here is 2.9 into 10 to the power minus 2. So mass is going to be mass of CaCl2 2.9 into 10 to the power minus 2 into what is mass over here, 40 plus 71, 111. So if you are going to solve, तो ये कितना हुआ एक तरह से 290 फिर 29 फिर 29 है ना, ऐसे राइट। अगर 29 2.9 का 100 से होगा तो ये हो गया। अब इनको सबको ऐड करोगे तो 0.9, this is 11 and this is 11.2 and this is 3. So this is approximately, that is, है ना, 321.9 into 10 to the power minus 2, or you can say 3.219 into 10 to the power minus, sorry, that's it, graph. So percentage of CaCl2 is going to be approximately, I will write 3.2 because I have taken a little bit of approximation here. So 3.21, let's say, into 100 divided by 10, that is 32.1%. So whoever is getting this answer, close to this answer, they are getting the right answer. Okay. Understand the methodology over here. CaCl2 is forming CaCO3 and CaCO3 is also forming CaO. So I have directly written, you can write one by one, both are same thing है ना, एक से एक मोल मिला, फिर यहाँ से एक से एक मोल मिला, तो डायरेक्टली वी कैन से कि यहाँ पे जो x मोल बनेगा उससे यहाँ x मोल बनेगा और ये x मोल यहाँ पे x मोल से बनेगा, ठीक है। तो ये आ गया। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है देन दे कैन आस्क। यस सोहम, तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे? सर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है मुझे सर। क्या प्रॉब्लम आया तुम्हें यहाँ पे? जैसे मैंने ये एक्सप्लेन भी कर दिया, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आया? सर मुझे लास्ट वाला स्टेप मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, फिर बाद में समझ गया अभी सर। कौन से वाले स्टेप में प्रॉब्लम है अभी? अभी प्रॉब्लम नहीं है सर, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ रहा था पहले बस। ठीक है। नहीं बेटा, किसी से भी आप आंसर देखोगे आंसर सेम ही आएगा। हेलो सर। हाँ हाँ, है ना अनुष्का? एक मिनट अनुष्का, आपका आंसर 30.8% मास रिलेशन से भी नहीं आएगा। आप यहाँ पे 111 ग्राम लिखोगे, है ना। एक और तरीका है, 1 मोल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 111 ग्राम, इट इज गोइंग टू फॉर्म 56 ग्राम। ये भी मास रिलेशन है। तो 1.62 ग्राम, so you are going to say how much it is going to be। तो बात तो वही आ गई ना, हमने जो यहाँ लिखा हुआ है, this is going to be 111 gram is going to give 56 gram, so 1 gram over here it is going to be 111 divided by 56, so here 1.62, then it is going to be 111 divided by 56 into 1.62. now remember what we have written over here, ये 2.9 into 10 to the power minus 2 है क्या? 1.62 divided by 56, 1.62 divided by 56, सेम ही तो कैलकुलेशन है। It is not going to give you another answer, both are same thing, ठीक है। कैलकुलेशन सेम ही है, मेथड और कहने का तरीका अलग है। It depends again, मैं बोल रहा हूँ ना कि आप कैसे भी कर सकते हो, जो आपके में पहले क्लिक कर जाए you can solve it. Yes, अब बोलो ओंकार। yes नहीं सर, हो गया, अभी आपने जो समझाया वही था डाउट। अच्छा, थैंक यू सर। हाँ बोलो बिलान। हाँ हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, तो पर इसमें NaCl क्यों नहीं यूज होगा? NaCl क्यों यूज होगा? क्यों यूज होगा मतलब? नहीं, क्यों नहीं यूज होगा? तो जैसे मान लो लिखो NaCl plus Na2CO3 क्या बनाएगा? सर कुछ अलग ही बन जाएगा। क्या अलग बनेगा? अरे भाई Na तो दोनों में सेम है ना, क्या बन जाएगा? NaCl plus Na2CO3 will form Na2CO3 plus NaCl। हाँ सेम तो सेम ही आया ना, तो कुछ चेंज नहीं हुआ, राइट? हाँ।
तो सर फिर आप दिया क्यों है फिर इसमें ऐसा? मिक्सचर है ना इसलिए दिया है। वही तो वो चाहते हैं कि आप पता करो कि पूरे 10 ग्राम्स CaCl2 नहीं है, बताओ उसमें कितना CaCl2 है, दैट्स दे वांट। तो सर पर इसमें हम लोग NaCl को भी तो X ले सकते हैं। ले लो x, NaCl2 तो ये 10 - x हो जाएगा, करके देखो खुद से। पे सेम आंसर आएगा। अच्छा, बहुत सही, ये पूछने की जरूरत है तुम्हें। सेम आंसर आएगा, ये पूछोगे ये सेम आंसर आएगा? अरे भाई सेम आंसर आएगा। आएगा। हाँ सर ठीक है। ठीक है, चल बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहे हैं, क्या बात है, लिखते हैं। ठीक है, हो गया वेदांत आपका डाउट? ओके, इनके डाउट होते जाए, हाथ नीचे करते जाओ। यस बोलो सोहानी। सर लास्ट वाला नहीं समझा मुझे, परसेंटेज CaCl2 में आपने क्या क्या तुम छोड़ो, मल्टीप्लाई मैंने किया? क्या किया, तुम बताओ तुमने क्या किया। सर मुझे क्वेश्चन समझा नहीं था, उधर तक ही समझा है, x ग्राम एंड 10 - x ग्राम मैंने किया, उसके बाद मुझे नहीं आ रहा था। तो उसके बाद उन्होंने क्या दे रखा है, रिएक्शन, आपकी वाली रिएक्शन मैंने बताई है पहले या नहीं, यस नो? हाँ तो आपने ये रिएक्शन लिख ही नहीं पाया आप। सर मैं NaCl भी ले रही थी साथ में। तुम NaCl ले लो ना, मैंने हमेशा बताया मिक्सचर एनालिसिस में अलग अलग रिएक्शन होती है। हाँ वो अगर मैंने मिक्सचर अलग भी है और दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, एक एग्जांपल मैंने कराया था, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन लिया था और उसमें मैंने ऑक्सीजन से कंबस्ट कराया था और कुछ लिखा था कि इतना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन। हाँ वो देन आई हैव अलग गिवन अलग लेना था। टू सेपरेट रिएक्शन। इससे मुझे ये पता चलता है कि आपने रिवाइज नहीं किया है। यस करेक्ट। हाँ सर वो मैंने इतना तक समझ गया सर, बस वो लास्ट वाला आपका नहीं, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, रिवाइज किया या नहीं किया? नहीं किया है। हाँ, तो दिक्कत आएगी, रिवाइज नहीं करोगे आप, दिक्कत आएगी, है ना? सो डोंट टेक इट लाइटली। सर वो लास्ट वाला आपने क्या क्या लास्ट में क्या बताया? किया मैंने नहीं मैंने वो सर नहीं, वो नहीं सर, हाँ परसेंटेज CaCl2। तो मुझे मास पता है यहाँ पे 3.2 हाँ ग्राम हो गया। टोटल मास है 10 ग्राम, तो 10 में से 3.2 कितना परसेंटेज होगा? तो तो टोटल 3.2 मास क्या डिवाइड बाई मिला 10 के? इंटू 100। टोटल मास CaCl2 का? टोटल मास मिक्सचर का ना, मिक्सचर में पूछ रहे हैं ना ओके कितना ओके परसेंट। ओके, अच्छा हाँ समझ गया समझ। हाँ। अनुष्का आपके हाँ में कुछ हेलो। क्वेश्चन में मिस्टेक हो, सॉरी कैलकुलेशन हाँ मिस्टेक होगा। सर, सर नहीं मतलब मैंने यही किया, लेकिन CaCl2 में Cl को 35 लिया ना, तो फिर वो 110 हो जाएगा ना? क्यों 35 लेंगे? 35.5 ही लेंगे हमेशा। 35.5 ही लेना है? हम्म, ओके, मुझे लगा ठीक है। कैलकुलेशन। ओके ठीक है। आर्यमान बेटा मैंने मोल्स निकाले, गिवन मास दे रखा है 1.62, CaO फॉर्म्ड हुआ और उसका मोलर मास है 56। समझ में आया? नहीं सर, वो 1.62 कैसे आया, वो ये समझ में नहीं आया। क्वेश्चन में दे रखा है 1.62। आपने क्वेश्चन लिखा है? हाँ सर। पढ़ के सुनाओ जरा। तो if formed CaCO3 is heated to convert all the calcium to calcium oxide, then the final mass of CaO is 1.62 grams. इसका मतलब आप क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे हो, तो आंसर कैसे आएगा? क्वेश्चन पढ़ना है भाई, ये बताना नहीं पड़ेगा, है ना? हाँ सर। ठीक है ना, बताओ भाई एकांश क्या दिक्कत है? हाँ सर, वो लास्ट स्टेप नहीं समझा सर। क्या है लास्ट स्टेप? सर वो मास ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻² इंटू 100 N वाला। तो मास निकाला ना, मोल्स पता है मुझे, मास निकाल सकता हूँ मैं। हाँ क्या होता है फॉर्मूला? सर एक सेकंड सर। हाँ मास एक सेकंड, मोल्स तो होता है कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मेरे मास को अपॉन नहीं पता, मुझे मॉलिक्यूलर ये मास। बताओ मास ऑफ CaCl2 का फॉर्मूला क्या होता है, रिवीजन करने के लिए हो? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो बस यहाँ पे मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास यही तो लिखा है। ठीक है सर, समझ रहा। ठीक है, रिवाइज करना है भाई, रिवाइज करना है, ये फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं। एंड फ्रॉम देयर लेट्स सी कि भाई कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, सो लेट्स सी, करो भाई पोल।
Yes. I will only give 1 minute for all the voting. I'm able to get only 117 votes. So 42% are able to get the answer. That's good. 42%, 48 made some mistake. Okay. Okay, Safi. Okay. So not able to understand the question. This part worries me a lot. तो जो लोग इस रेंज में आ रहे हैं वो पहले क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से. कई लोग क्वेश्चन लिखते नहीं है, मैंने ये भी देखा. वो जल्दी में क्या करते हैं ना, केवल कुछ कुछ बातें लिख लेते हैं. होता क्या है कि पहले तुम ये समझो, जब तक वो इमेज पूरी बनेगी नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा. तो आप जल्दी में केवल कुछ पार्ट लिख लोगे क्वेश्चंस का और आप सोचोगे मुझसे आंसर आ जाएगा, तो नहीं आएगा. राइट नाउ यू आर लर्निंग, सो मेक गुड हैबिट्स राइट नाउ. तो पहले क्वेश्चन आप पूरा लिखो. कई लोग पूरा लिखते नहीं है, वो पढ़ते हैं यहाँ पे और फिर वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो माइंड में पिक्चर नहीं बनी, वो डिकोडिंग नहीं हुई. उसके लिए टाइम लगता है. उसके लिए 2 बार, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो 1 बार और पढ़ना है. ठीक है, फिर हाईलाइट करना है. ये शुरुआत की चीज है. धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इसमें क्या ढूंढना है, क्या पता क्या दिया गया है. But when you are starting to solve the question, this is very important that read question twice. Do not be fast in reading question. कई बच्चों को लगता है कि हमें फास्ट करना है, इसका मतलब क्वेश्चन रीड जल्दी कर लेंगे. क्वेश्चन जल्दी रीड करने से क्या होता है, क्वेश्चन गलत रीड हो जाता है. तो फास्ट की जगह वो गलत हो जाएगा और खराब हो जाएगा. तो जो लोग ये कर रहे हैं वो ऐसा ना करें. ठीक है ना. इसमें यस विकास बोलो. सर थियोरेटिकल मास CaCl2 का 10 कैसे आया था? किससे आएगा? 10 कैसे आया था वो? लाइक आपने थियोरेटिकल मास से मिक्सचर जो का लिखा था. मिक्सचर का मास कितना है? अच्छा हाँ, वो तो 10 ग्राम. ठीक है है. ना, 10 ग्राम. तो इसमें एक और बात आती है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल या POAC. पहले शॉर्ट में ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. अब ये है क्या, है ना, इसका मीनिंग क्या है? यही क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है उसको मैं समझा रहा हूं दूसरे मेथड से. अनदर मेथड. If series of reactions are given, if series of reactions are given and we don't know all the reactions, in that case we can apply POAC. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे 2 रिएक्शन दे रखी थी. ठीक है, फर्स्ट क्या था, जैसे CaCl2 से CaCO3 और CaCO3 से CO. और मान लो आपको ये रिएक्शन नहीं पता हो, या हो सकता है बीच में यही नहीं पता हो आपको, बस यू डोंट नो, है ना, इन बिटवीन क्या हो रहा है, कितना बन रहा है. ठीक है, आपको बस इनिशियल पता है CaCl2 लेके चले थे और CaO फॉर्म हो गया था, बस इतना पता है. ठीक है, राइट. यू डोंट नो इन बिटवीन क्या बना हुआ है. समथिंग बना है, नहीं पता क्या बना है ना. और फिर ये पता है फाइनल. इनिशियल पता है और फाइनल पता है, बस. तो इस केस में वी कैन अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स, हमने ये पढ़ा है सबसे पहला मास कंजर्वेशन में, कि नंबर ऑफ एटम्स ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं. तो जितने यहाँ पे कैल्शियम के एटम होंगे उतने ही यहाँ पे कैल्शियम के एटम होंगे, है ना. इन्होंने ये बात पूरी, उस क्वेश्चन में ये जरूर होना चाहिए, ये बात मेंशन होनी चाहिए कि ऑल का कैल्शियम आर कन्वर्टिंग इनटू CO, है ना. तभी हम बस लगा सकते हैं. अगर हमें ये बोला गया हो कि कुछ, है ना, some percentage is going to complete into CO, then we cannot apply. So they have mentioned in the question. So this is the condition, है ना. Remember, all atoms of an element
should convert into final product completely. ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन लिखा था कि ऑल कैल्शियम आर कन्वर्टिंग इनटू CaO. ठीक है, नाउ CaCl2 इनिशियल, CaO फाइनल, बीच में नहीं पता क्या क्या हुआ इसके साथ. तो क्या लिख सकते हैं कि एटम्स ऑफ कैल्शियम इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट और फिक्स्ड और कंजर्व. कैल्शियम के जितने एटम यहाँ पे लेंगे उतने ही एटम यहाँ पे होंगे. ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो दे कैन रेज द हैंड टिल हियर. कहाँ लगाना है POAC? If series of reactions are given and we don't know the reaction, we don't know all the reaction, in that case we can apply POAC. और क्या याद रखना है कि all atoms of an element should convert into final product. ठीक है, तो इससे हमें क्या होगा, हमारा लॉट ऑफ टाइम जो हमें रिएक्शन लिखने में लगा वो बच जाएगा. फाइनल, इनिशियल, फाइनल. तो यहाँ पे क्या हो गया, hence so according to POAC, atoms of calcium will remain constant. Hence, number of calcium atom in reactant, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ये नंबर ऑफ कैल्शियम एटम, हमें एटम देखना है पहले, हमें मॉलिक्यूल नहीं देखना है. So number of calcium atom in reactant is equals to number of calcium atom in product. अब यहाँ पे वो एटोमिसिटी वाला प्रिंसिपल लगाएंगे. हाउ मेनी कैल्शियम एटम्स आर इन CaCl2. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, विच इज इक्वल्स टू n इंटू नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ कैल्शियम एटम इन रिएक्टेंट का मतलब क्या है, यही बात हम मोल्स के लिए लिख सकते हैं, सेम बात. या फिर हम इसको लिख सकते हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम in reactant is equals to number of moles of calcium atom in product. जिनको नहीं समझ में आ रहा हो वो क्या करें, बस इसमें मैंने मोल्स और ऐड कर दिया बस. तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैल्शियम एटम इन रिएक्टेंट लिखा है, सो आई हैव रिटन मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम इन प्रोडक्ट. हम मोल्स कैसे निकालेंगे, तो भाई अगर इसका 1 मोल है तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 मोल होगा. अगर मैं मान लो कहीं लिखा होता है ऐसा Ca3PO4 होल ट्वाइस, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca3PO4 होल ट्वाइस. भाई एक मॉलिक्यूल में कितने, 3 एटम है, तो 1 मोल में कितने हो जाएंगे, 3 मोल एटम हो जाएंगे. तो हमें क्या याद रखना है, ये कन्वर्जन याद रखना है कि कैसे मॉलिक्यूल से मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम निकालना है. तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca3PO4 होल ट्वाइस. एनीवे यहाँ तो 1 ही है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. बट आई एम टेलिंग यू व्हेन Ca3PO4 होल ट्वाइस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल में 3 है, एक मॉलिक्यूल में 3 कैल्शियम है. ठीक है, तो 10 में कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे. ऐसे 1 मोल में कितने हो जाएंगे, 3 मोल हो जाएंगे. तो हमें मोल्स ऑफ कैल्शियम लिखना था तो 3 मोल्स हमें लिखना होगा. सो दिस इज द वन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई एम राइटिंग ओवर हियर. मेरे को लगता है आपने ये पहली लाइन तो लिख ली होगी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. तो क्या हो जाएगा, हेंस व्हिच इज इक्वल्स टू n into number of moles of reactant N1 is equals to N2 into moles of number of moles of product. तो आप बहुत आसानी से, ये आपका फॉर्मूला है. यहाँ पे N1 and N2 क्या है, here N1 and N2 are
number of atoms of an element in a molecule of reactant and product. Respectively. So let's say you can write all these things. ठीक है, ये हमने एक कॉन्सेप्ट बता दिया. Anyway, यहाँ से हमें क्या पता चला, N1 1 है, N2 1 है, तो number of moles of reactant, this is CaCl2 is going to be number of moles of product, that is CO. तो अगर हमें रिएक्शन नहीं भी पता होती तो हम डायरेक्टली ये बात लिख सकते थे कि moles of CaCl2 is equals to moles of CaO, and then we can solve जो अभी हमने लिखा वो हम दोबारा, है ना, दूसरी तरह से हमने ये बात पता चल गई. अगर हमें रिएक्शन नहीं भी पता होती then we are able to find कि भाई यहाँ पे इनके और इनके बीच में क्या रिलेशन होगा. Now अब मैं ले रहा हूँ डाउट, वही जिन के जो भी डाउट है, जिनको ये बातें नहीं समझ में आई हो. हेलो सर. हाँ, आपने अभी एग्जांपल दिया था ना CA3PO4 द होल ट्वाइस का, उसमें जैसे आपने कैल्शियम और इनिशियल और फाइनल में जो इक्वेशन निकाला कि 1:1 है तो सेम मोल्स रहेंगे, वैसे ऑक्सीजन के लिए भी निकाल सकते हैं. हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट ये ऑल ऑक्सीजन शुड कन्वर्ट इनटू, अगर एक से ज्यादा में ऑक्सीजन जा रहा है देन वी हैव टू राइट ऑक्सीजन फॉर एवरी लेट्स से कंपाउंड, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. हाँ, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हो CaCO3 और वहां पे लिखा हो CaO प्लस CO2, हाँ, तो यहाँ पे एक है वहां दो है, देन यू हैव टू अप्लाई, है ना, टोटल नंबर कंजर्व रहेंगे, देन यू हैव टू अप्लाई कि नंबर ऑफ कैल्शियम एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैल्शियम एटम इन प्रोडक्ट क्या होगा, CaO प्लस CO2 दोनों हुए. हाँ, तो देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. तो बेटर वही होता है कि एक से एक में जा रहा है, बस आप यहाँ देख लो यहाँ कितने हैं, यहाँ पे कितने एटम्स हैं, वो दैट इज बेटर, बट हम लगा सकते हैं. ओके सर, वी कैन अप्लाई. थैंक यू. And what if it is reacted with a compound having Ca? Ca से कौन react करेगा? Ca, कैल्शियम, कैल्शियम से react करके क्या होना है? कैल्शियम. हाँ, बोलो एक बात. हाँ सर, वो like number of moles of Ca atom in reactant is equal to number of moles of Ca atom in product के बाद नहीं समझा. उसके बाद मैंने क्या लिखा है, पढ़ो लेना. N1 into number of moles of reactant is equal to N2 into number of moles of product. तो ये बात सर क्लियर नहीं है. मैंने ये बताया कि भाई यहाँ पे अगर जैसे मान लो लिखा हुआ है Ca3PO4 होल ट्वाइस मान लो, और ये सारा का सारा जा रहा है यहाँ पे Ca, तो यहाँ जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे होंगे. यहाँ कैल्शियम के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कैसे पता लगाओगे? तो लिखोगे 3 इंटू, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही तो टोटल हुए मॉलिक्यूल्स ऑफ Ca3PO4 होल ट्वाइस, which is equals to यहाँ पे Ca बना रहे हैं मान लो CaO, so that is equals to 1 into number of molecules of CaO. Now how many number of molecules are here? So you can convert into moles, so rather than molecules we can write moles. तो वही लिखा हुआ है मैंने. तो सर आंसर इन दोनों को इक्वेट करने के बाद आएगा? Obviously. ठीक है सर, ओके. अब इससे हमें फायदा क्या हुआ, हमें जो स्टोकियोमेट्रिक रिलेशन बनाना था रिएक्शन लिख के, वो हमें नहीं बनाना पड़ा, यहाँ पे हमें डायरेक्टली पता चल गया. ओके सर. तो ठीक है, सर अभी हमने जो स्टोकियोमेट्रिक रिलेशन बनाया था ना 1:1, वो हमें रिएक्शन के बाद पता चला था. तो अगर हमें रिएक्शन नहीं पता हो तो क्या करेंगे, तो ये स्टोकियोमेट्रिक रिलेशन हम इस POAC से लगा लेंगे. तो सर ये वाले में तो POAC में N1 और N2 दोनों 1 ही होंगे ना? हाँ, ऑब्वियसली. ठीक है सर, ओके, थैंक यू. तो यहाँ पे क्या हो गया, सो हेंस वी कैन राइट हियर, है ना, 1 into moles of
CaCl2 is equals to 1 into moles of CaO, and हमें moles of CaO पता है, that is equals to 1.62 divided by 56, that is moles of CaCl2 आ गया. So mass of CaCl2 is going to be 1.62 divided by 56 into molar mass. Then you will calculate वो 3.21 ग्राम जो आंसर आ रहा था वो हमारा आ गया. तो इम्पोर्टेंट बस ये है कि हमने वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द रिलेशन ओवर हियर विदाउट राइटिंग द रिएक्शन. ठीक है, तो दिस इज अनदर मेथड, इसको लिख लो, कंप्लीट कर लो. चलो इससे आगे चलते हैं अभी. ठीक है, तो ये तो जैसे मान लो एक और मेथड मैंने अभी बता दिया है. नाउ आई विल गिव यू वन क्वेश्चन. $27.6 gram K2CO3 was treated by a series of reagents to convert all of its carbon to K2ZN3 FeCN whole twice. Calculate the weight of product formed. Molecular weight of K2ZN3 FeCN whole twice is 698. This is given in the question. ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन पे भी क्या है, एक सीरीज ऑफ रिएजेंट दे रखे हैं. ठीक है, K2CO3 is converting into this. क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, कार्बन ओवर हियर. तो बस अप्लाई द लेट्स से POAC. लेट्स सी आंसर क्या आ रहा है. K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, तो पोटेशियम इज that is going to be 39 into 2 plus 6 CO3 60 138. हाँ सर, ये POAC में मुझे ये डाउट था कि थर्मल डिकम्पोजिशन जब भी होगा ऐसे सक्सीडिंग रिएक्शंस में तो तभी क्या करेंगे. तभी भी लगेगा सर एक एग्जांपल है, एक मिनट. हाँ ये
Cl2 plus 2KOH, ये हो रहा है रिएक्शन, एंड देन हम लोग उसके KClO को ये थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो KCl plus KClO3 मिलता है, फिर KClO3 को थर्मली डिकम्पोज किया तो KClO4 plus KCl मिलता है। तो हमें KClO4 का ये ढूंढना, तो सर इसमें तो क्या उसमें नहीं करना लगा है? पाएंगे बेटा, उसमें KCl भी काउंट करना पड़ेगा Cl के लिए। सारे के सारे Cl KClO4 में नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट? हाँ, So you have to keep in mind how many moles of KCl are there. तो दो पूरी रिएक्शन कैसे लिखेगी? मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोल्स इन प्रोडक्ट। तो क्लोरीन Cl2 से तो आ जाएगा 2 into मोल्स ऑफ Cl2, और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा मोल्स ऑफ KClO4 1 into K मोल्स ऑफ KClO4 प्लस 1 into मोल्स ऑफ KCl प्लस 1 into मोल्स ऑफ KClO3, जितना सब बन रहा है सब आपको लेना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे रिएक्शन में मतलब तो नहीं फिर नहीं लगा पाओगे ना, फिर आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे वेरिएबल हो गए। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो बेटा हार्दिक आपका आंसर सही है। ओके अभिनव आपका आंसर भी सही है ना? तो दैट्स इट, इसमें कुछ नहीं करना है हमको, बहुत आसान दे रखा है यहाँ पे। नाउ वी नो दैट ऑल द कार्बन इज कन्वर्टिंग इनटू K2Zn3 FeCN whole twice, whole 6 and whole twice, that is a complex, ठीक है? And how many number of carbon atoms in this complex? So CN6, that means 6 carbon and twice, then 12. So 12 carbon atoms are there, 6 into 2. So that is what we can write directly, 1 into number of moles of K2CO3 is equals to 12 into moles of K2Zn whole thrice FeCN whole 6 whole twice. ये यहाँ कितने मोल्स हैं? You have given mass, you know molar mass 138, so this is 27.6 divided by 138 is equals to 12 into, they are asking mass not moles, so you have to write mass of K2Zn thrice FeCN whole 6 whole twice divided by its molar mass, so that is 690. Now from here you can see this is just double, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? Over here 0.2, and this is going to multiply here, so 0.2 into 698 divided by 12. Now you can see अगर ये जा रहा है 12 से तो ये जाएगा कितना? 5 and then 98, so it is close to that ना, पूरा नहीं जा रहा है, so this is going to be 5 and over here this is going to be 9, so 98, so 8 times point, and then over here 1 something 180, so 6, so then you will multiply here 2 into 58 is 11.6 something, so 11.63 something gram. Okay, that is going to be mass of K2Zn3 FeCN whole 6. So you can understand again, पहले हमने क्या किया, यहाँ पे moles निकाले, moles means given mass divided by molar mass, and here moles is given mass divided by molar mass. So this mass this mass they are asking, molar mass they have been given, 12 is number of carbon atom, and then you have solved, you got the answer. Yes, जिनका गलत आ रहा है, सानिया क्या गलती हुई देखो, क्या गलत किया है यहाँ पे? 12 इधर तो मल्टीप्लाई नहीं कर दिया था, या डिवाइड करने की जगह मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया, कुछ ऐसा कुछ किया होगा तभी आंसर नहीं आ रहा। हाँ हेलो सर। हाँ, मैंने कार्बन की जगह के कांस्टेंट था ना दोनों में, K2 और K2 नहीं, उन्होंने क्या बोला है? अरे तुम्हें नहीं पता ना कि के और कहाँ गया है? सीरीज ऑफ रिएजेंट में दे हैव रिमेन कार्बन एज कांस्टेंट, दे आर नॉट सेइंग कि पोटेशियम कांस्टेंट है। अगर उन लोग ने दिया रहता पोटेशियम कांस्टेंट है तो यूज कर सकते, तो हम लगाते हैं, अभी नहीं दे रखा है ना, यू डोंट नो ना एक्चुअली कि मैं कि पोटेशियम कहाँ कन्वर्ट हुआ। हाँ
Okay, sir. Thank you. इसमें किसी को डाउट लेते हैं? हाँ बोलो आकृति, क्या दिक्कत है? हेलो हाँ सर, शायद गलती से हो गया था, सॉरी। ओके चलो। सो ओके, तो ये तो हो गई हमारी बात यहाँ पे। पीओएसी मैंने थोड़ा समझा दिया है ना। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, लेट्स सी। मजा आ रहा है मतलब क्वेश्चन करके? तो ये बस ये लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा थोड़ी डिफिकल्ट रहती है मोल कॉन्सेप्ट्स की कई बार, और कई सारे केसेस होते हैं। सो मे बी इन दैट थिंग मे बी कुछ बच्चे अभी दिक्कत कर रहे हैं। लेट्स सी कितने लोगों को समझ आ रहा है ना। एक पोल इस पे भी लेते हैं। Remember, I will give only 1 minute for all the voting. Last 10 seconds. Okay, that's it. So 126 students has given the vote, and these are the results. So 31% are saying okay, it's easy, I'm able to understand, and some people are saying this is moderate, but I'm keep making silly mistakes. And 21%, yes, this 21 and this 5 students are saying they don't understand anything. Other, okay, so some of you are not getting poll, okay. Right, so okay. These 5 students, who are those 5 students? Raise your hand or message me privately, let's see. We're not able to understand. So anyway, I will say in every chapter there is a one important thing you have to keep. This is the one habit over here. We are building the habit rather than we are solving so many, let's say, questions. The habit is you have to start every question with a seriousness that you are reading it carefully. If you are going to find that mistake you are making, that the major mistake is silly mistake, that you are not able to understand the question, or you have applied something wrong which is not given in the question. So go slow in reading the question. Okay, and another thing is, if you don't understand anything, if you don't understand anything at all, then go and check your notes. So you have to revise your notes again, and this is very important. This is also good. Like if you don't understand, कम से कम तुम्हें ये पता तो है कि तुम्हें नहीं आता है ना। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता होता, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, उन्होंने देखा ही नहीं, तो उनको ये पता ही नहीं आता। यू शुड रिमेम्बर वन थिंग कि रियलाइजेशन है गलती का तो वो सुधर भी सकती है। अगर तुम्हें ये बात पता है कि तुम्हें नहीं आता है तो वो आ सकता है तुमको, है ना। यू आर एबल टू गेट द आंसर। लेकिन सबसे प्रॉब्लम तो वो है जिनको ये पता ही नहीं, उन्हें नहीं आता, वो देख ही नहीं रहे, उन्होंने क्वेश्चन देखा ही नहीं, उन्होंने सॉल्व भी नहीं किया, घर पे बैठ के कुछ नहीं किया, तो क्या होगा, दे विल फील कि यार उन्हें आता है नहीं आता है। मे भी 4 क्वेश्चन उन्होंने किए, उनसे बन गया, उन्हें लगता है आ गया,
पता चला एग्जाम में नहीं आया. So important thing is more solving is required. Solve a lot of questions. ठीक है. तो अभी मैं थोड़ी देर में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसके बाद मैं ब्रेक दूंगा और उसके बाद डिस्कशन करेंगे. That's it. तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं. दिस इज मिक्सचर एनालिसिस अगेन. ठीक है. मिक्सचर एनालिसिस assume to be very difficult. ठीक है. $92 mixture of CaCO3 and MgCO3 heated strongly in an open vessel. ओपन कंटेनर में हमने CaCO3 और MgCO3 को हीट किया तो क्या होगा, CO2 निकल जाएगा दोनों से. यहां बनेगा CO, यहां बनेगा MgO. After complete decomposition of the carbonates, it was found that the weight of residue is 48 gram. Find mass of MgCO3 in the mixture. Okay, sample mass is given 92 grams and residue mass is given 48 gram. How residue is going to form? I have told you the reaction. CaCO3 is going to heat, then it is going to form CaO plus CO2, and MgCO3 is going to be heat, then it is going to form MgO plus CO. Solve. अच्छा, Akriti is saying sir एग्जाम कब होगा? अभी तो तुम्हारे 10th के एग्जाम बाकी हैं कई लोगों के. It's happening in July. Sir, is there any book that we should refer to? There are so many books, but I would say कि stick with module first. Yes. प्रथम, yes. CO2 तो निकल जाएगा तो residue is going to be because of CO plus and MgO. Both masses going to be residue. Yes, beta, all these things test regarding everything you should contact administration section. They will tell you, they will guide you कि कहाँ पे क्या मिलना है, कैसे होना है ना, कैसे weekend test जो होंगे वो you can avail. All these things will be given there. But wait, अभी थोड़ा सा ये कोविड के कारण थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा. Things will get clear in a little bit. Like let's say some time, 1 week or 2 weeks, maybe more than that. So I got first answer. Ashima is saying 42 gram. Let me, let's say, calculate here.
So one more answer is 46 gram, and another 42 gram, 42. I think many students are getting 42. We'll see. Yes, I think 42 is correct. Yes, 42 is correct. Now, let's say again, we are going to say, let's say over here, this is x over here, and this is 92 minus x. Okay. So how many moles? Let's say over here, divide by 100, divide by 84. 1 mole give 1 mole. So this is how many moles are going to form? X divided by 84 into 40, and 92 minus x divided by 100 into 56. These are masses. I have written directly. ठीक है, तो ये आपको ऐसे डायरेक्टली लिखना आना चाहिए. x ये लिया तो ये 92 minus x, मोल्स कितने हो गए? 92 minus x divided by 100. How many moles are going to be here? X divided by 84, because molar mass is 84. So mass divided by molar mass, moles. Mass divided by molar mass, moles. How many are forming? 1 moles are forming. So this is how many moles are going to be over here? 92 minus x divided by 100, or x by 84. So mass of CaO is going to be 92 minus x divided by 100 into 56. Mass of CO2, mass of MgO, ठीक है, then it is going to be x by 84 into molar mass 40, है ना. MgO का molar mass कितना है? 40. तो moles into molar mass, moles into molar mass. ठीक है, ये आपने तुरंत ये निकाल लिया. जब अब इसको सॉल्व कर लो, because this is given, right? So 92 minus x 56 divided by 100 plus, okay, this is going to be x by 84 into 40 is equals to 48. So if you are going to solve, you can take common 4, तो से ये 12 हो जाएगा, ये 14 और यहाँ 10. You can take LCM directly, so 8400, तो ये कितना हो जाएगा? 92 into 84, और ये 14 भी है तो into 14 minus, है ना, this is going to be over here 14 and 84, 14 into 84 x plus 84 से ये आ गया तो ये कितना हुआ? 10 into, तो 10 into 100 तो 1000. X is equals to 12. Now you can solve this part. थोड़ा सा लेंदी हो गया ये, right? So okay, we don't have any other option. तो इसको देखेंगे. Anyway, इसको इधर ले जाओ, थोड़ी सी कैलकुलेशन है. 92, 84. So this is going to be 8, 36 and 16, 52, 5, 72 and 577. And then again 14 is going to multiply. So 14 into 8, 12, 128, 9, 3, and then 7, and 3, 101. So 10, 14 into 7. So that is going to be 98, 10, 108. थोड़ा सा लंबा आ रहा है, ठीक है. Anyway, अब हमारे पास और ऑप्शन भी नहीं है. 108,192 minus 84 into 14, so 56, and 14 into 8, and 12, 112 and 5. So this is 107.
1176. So 1176 means minus 176x. That is 12 into 8400. थोड़ा लेंदी हो गया यार ये, इसको बहुत लेंदी हो गया, मतलब कैलकुलेशन ये सही है, ये 42 आएगा, लेकिन ये काफी लेंदी हो गया। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा सा ना ऐसे क्वेश्चन में दिस इज लिटिल बिट लेंदी कैलकुलेशन पार्ट, फिर आप इसको सॉल्व करोगे। कुछ और भी कट कर सकते थे क्या यहाँ पे, अगर हम कुछ और भी कट करते तो फिर उससे बनता नहीं, राइट? ठीक है, एनीवे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल बी गेटिंग आंसर विल कम x इज इक्वल्स टू 42 ग्राम। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, अप्रोक्सीमेशन हम लगा सकते हैं। उसमें सबसे अच्छा अप्रोक्सीमेशन होता है कि पहले इसके जितने भी, है ना, दूसरा मेथड बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो अगर मान लो यहाँ पे जो 92 ग्राम है, ठीक है, दैट इज गिविंग 48 ग्राम, राइट? तो हम अप्रोक्सीमेटली ये मान ले रहे हैं कि इसमें जो है हाफ, लेट्स से over here this 92 is going to be, है ना, is going to be कैल्शियम कार्बोनेट एंड MgCO3। तो MgCO3 का भी आधा मोल है, और ऐसे ही बस अंदाजे से MgCO3 का भी आधा मोल है और CaCO3 का आधा मोल। तो CaCO3 का आधा मोल मतलब 50 ग्राम हो गया, और MgCO3 का भी आधा मोल मतलब दैट इज 42 ग्राम। पहले ये चेक कर लो एक बार, कई बार कैलकुलेशन में यहीं पे आंसर मिल जाता है, तो ये आपको अंदाजा मिल लग गया 50 मतलब, और MgCO3 का 42, दैट मींस ये आधे आधे मोल प्रेजेंट है यहाँ पे, एक अंदाजा यही लग गया यहाँ पे। अगर मान लो यार 90 की जगह लिखा होता लेट्स से 90 केवल, अंदाजा बता रहा हूं मैं ना, सॉल्व तो ऐसे ही होगा एग्जैक्ट आंसर। दिस इज जस्ट आई एम सेइंग कि आपने 92 ग्राम को आधा आधा मोल मान लिया, या फिर कहीं 10 ग्राम लिखा हुआ है तो उसमें आपने देख लिया कि मतलब 0.1 मोल्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ करके, है ना, या 1/20 हो सकता है, ऐसा देख लिया अंदाजे से, राइट? एनीवे पहले मैं इस पे जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है वो सेम आ गया, लेकिन अगर मान लो कहीं 90 ग्राम दे रखा होता, कहीं 90 ग्राम दे रखा होता, इसका मतलब क्या है कि जो MgCO3 है, राइट, उसका मास थोड़ा सा ज्यादा है और CaCO3 का कम है, क्योंकि अगर MgCO3 का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तभी तो ओवरऑल मास कम आएगा। अगर CaCO3 का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, ओवरऑल मास 92 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। एनीवे, सो इन दैट केस यू कैन अप्लाई दैट टाइप ऑफ कंसिडरेशन और अप्रोक्सीमेशन। अब आपको पता है अगर ये आधा मोल है तो यहाँ पे भी आधा मोल बनेगा। आधा मोल कितना हो गया इसका, 56 इंटू हाफ दैट इज 28, एंड इसका हाफ मोल है तो 40, तो 20, तो 20 प्लस 28 48। तो ये जो हम सोच रहे हैं वो सही है, एंड यू आर एबल टू गेट ओके ये 20 ये 28, दैट्स हाउ यू आर एबल टू गेट के MgCO3 is going to be 42। ठीक है, अब ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये ऑब्वियसली बात है कि आपको हमेशा स्ट्राइक नहीं होगा। ठीक है, सो डोंट से कि सर हमें कैसे पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, विद प्रैक्टिस आपको थोड़ा थोड़ा दिखना चालू होगा कि यार 92 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ क्या, स्ट्राइक हो गया अच्छी बात है, फास्ट हो जाएगा, नहीं तो भाई अपना जो मेथड है कैलकुलेशन वाला वो चलेगा। कई बार ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया कि ऑप्शन एलिमिनेशन में ये काम करेगा, ये वाला मेथड जो क्रॉस बैक कैलकुलेशन है, कि आपने कुछ अज्यूम किया, अच्छा ये इतना हो सकता है, ये इतना हो सकता है, राइट? अब अगर किसी ने 10 ग्राम दे रखा हो तो आपको पता है भाई 10 ग्राम तो बहुत कम है, CaCO3 और MgCO3, है ना, इनका इसका मास होता है 100, इसका मास होता है लेट्स से 84, तो इनके एक एक मोल का मास है 184। 184 के कंपैरिजन में 10 इज वेरी लेस, तो ये 1/20 के आसपास हो सकते हैं, 1/20 1/20। ठीक है, राइट, 10 में अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा, ऐसा, राइट? ऐसा ही कोई क्वेश्चन था ना अभी थोड़ी देर पहले CaCl2 वाला, राइट? तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा, ओके ये 1/20 के आसपास आ सकते हैं। 1/20 अगर होता तो इसका मास कितना होता, इसका 1/20 का मास होता CaCO3 का
1/20 moles का मास, that is going to be 1/20 into 100, 5 ग्राम. MgCO3 का मास होता 1/20 into 84, that is 4.1 ग्राम. इसका मतलब क्या है, टोटल मास बनता है 9.1 ग्राम, यहाँ पे क्या है 10 ग्राम. इसका मतलब ये ज्यादा है और ये कम है ना. इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तभी तो 9.1. अभी 1/20 एंड 1/20 का मास कितना होता है 9.1 ग्राम. एक्चुअल सैंपल का मास कितना है 10 ग्राम. इसका मतलब क्या है, CaCO3 का कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, MgCO3 का कंट्रीब्यूशन कम होगा, तभी तो ओवरऑल मास 10 ग्राम आएगा. सो दैट हाउ यू कैन एलिमिनेट. अगेन मैंने बोला है कि ये बस कैलकुलेशन बेस्ड है, तो जिनको कैलकुलेशन नहीं आती है उनको ये मेथड बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं है, आप वही पुराना मेथड करें, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन में ये अगर मैं बता भी दूंगा यहाँ पे आंसर तो आपको लगेगा तो कि आपको आ गया है, लेकिन वो आप अप्लाई करना नहीं सीख पाओगे. सो फॉर दैट जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है वो ये मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ. मैंने बहुत ज्यादा जैसे कंजस्टेड तरीके से लिख दिया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. What I am trying to say is sometimes you can break, है ना, masses approximately. तो जैसे अगर मान लो CaCO3 और MgCO3 का मिक्सचर है और इसका मास दे रखा है 10 ग्राम, तो आप सोचो कि 10 ग्राम के लिए क्या मतलब क्या है कि इनके एक एक मोल अगर हम लेंगे बराबर बराबर, है ना, तो ये हो सकता है आपका 1 मोल लेंगे तो ये मास आएगा 184 ग्राम. तो 184 का कितना पार्ट ये 10 ग्राम के आसपास आएगा, तो 1/20 मोल्स. तो 1/20 इसका ले लो, 1/20 इसका ले लो. 1/20 का मास यहाँ आ रहा है 5 ग्राम, यहाँ आ रहा है 4.1 ग्राम. तो अगर 1/20 एंड 1/20 मोल्स आर प्रेजेंट, देन दिस इज गोइंग टू बी 9.1 ग्राम. बट यहाँ मास क्या है 10 ग्राम है. इसका मतलब क्या है, इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज्यादा होगा और इसका कंट्रीब्यूशन इसीलिए थोड़ा सा कम होगा. तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं 50-50% से. तो हमें ये बात पता चल गया कि भाई CaCO3 का मास दैट इज गोइंग टू बी मोर देन दैट. तो ये कहाँ, ये टेक्निक कहाँ हेल्पफुल होगी, जहाँ पे ऑप्शन दे रखे और आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि अच्छा ये है, तो यू कैन चेक दैट. ठीक है, जहाँ लंबी कैलकुलेशन है देयर यू कैन अप्लाई हिट एंड ट्रायल मेथड. दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड. आप एलिमिनेटिंग द ऑप्शन मेथड कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, और एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते इस मेथड से, तो एग्जैक्ट आंसर जो हम मिक्सचर एनालिसिस कर रहे हैं वही. ठीक है, तो अब यहां से लेंगे. हाँ, किसी ने बोला है कि सर परसेंटेज कंपोजिशन निकाल कर सकते हैं डायरेक्टली. परसेंटेज कंपोजिशन निकाल कर तो आपको परसेंटेज ही तो पता करनी है. यहाँ पे MgCO3 कितना है, CaCO3 कितना है. नहीं, इस मेथड से आंसर करेक्ट नहीं आएगा, आंसर अप्रोक्सीमेटली सही आएगा. ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करोगे. 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यू हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शन जो आपका क्लोजेस्ट होगा, यू कैन अप्लाई.